لا إله إلا الله. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. هدي ما يهدى إلى الحرم، ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر والغنم، وہ جانور جو بیت اللہ الحرام کے لیے ہدیہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ مکہ میں ذبح ہو، مینا میں ذبح ہو، وہ ثمانیت ازواج میں سے کوئی ایک جانور جو قربانی کیا جاتا ہے، اونٹ کا مذکر مؤنث، گائے کا مذکر مؤنث، اور بکرا بکری اور دمبا بھیڑ، یہ جو 8 قسم کے جانور ہیں، ان کو حجاج کرام کی طرف سے جو ذبح کیا جاتا ہے دم تمتع یا دم قران کی حیثیت سے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور غیر حاجی جو ذبح کرتے ہیں، خواہ مکے میں کریں یا مکے کے باہر پوری دنیا میں جو مسلمان کرتے ہیں 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اس کو اضحیہ کہتے ہیں، قربانی۔ اور وہی جانور جو حجاج کرام تمتع اور قران کے نتیجے میں ہدی پیش کرتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ والہدی معطوف، والہدی الہدی ما یہدی الی الحرم، جو حرم کے لیے ہدیہ بھیجا جائے۔ تو کچھ لوگ تو حج میں ہوتے ہیں، حج تمتع اور قران کرتے ہیں، تو وہ ہدی دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملک میں ہی ہوتے ہیں اور دور دراز شہروں سے اپنا جانور بھیجتے ہیں کہ وہ حدود حرم میں، مکے میں، مینا میں ذبح کیا جائے۔ اور ہوتے ہیں وہ اپنے شہر میں، محرم نہیں ہوتے۔ مثلا مدینہ میں ہے اور کوئی جا رہا ہے اگر مدینہ، تو اس کے ساتھ اونٹ بھیج دیا، اونٹ کی اگر سواری کر رہا ہے وہ، تو کہا لے جاؤ میرے بھی 2-3 اونٹ لے جاؤ، اور اس کو 10 تاریخ کو مینا میں ذبح کر دینا، مکے میں ذبح کر دینا فقراء مسلمین کے لیے۔ یہ در حقیقت کعبۃ اللہ کی تعظیم اور حدود حرم میں اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والوں کے لیے صدقے کے طور پر، تقرب اللہ کے لیے کچھ لوگ اپنے شہروں میں رہتے ہوئے ہدی بھیجا کرتے ہیں۔ اور جو حجاج کرام ہیں جنہوں نے حج تمتع کیا ہے یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی ہے، اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد، جمرۃ العقبہ کو کنکری لگانے کے بعد، جانور ذبح کرنے یا بال ناخن لینے کے بعد جو حلال ہوتے ہیں، جس کو قارین کہتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی ہدی ہے۔ تو بہرحال یہاں جو پہلی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حجاج یا عمرہ کرنے والوں کے ذریعے اپنے جانور بھیجا کرتے تھے تاکہ حرم میں وہ ذبح ہو۔ اس کی حیثیت صدقہ کی ہوتی ہے۔ اور اپنے شہر سے حدی مکہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی محرم ہو جاتا ہے۔ محرم تو تبھی ہوگا جب وہ میقات پہ پہنچے گا، احرام کی چادر پہنے گا اور حج کی قسموں میں سے کسی قسم کی نیت کرے گا، عمرے کی نیت کرے گا، یا حج کی کسی قسم، تینوں قسموں میں سے کسی قسم کی نیت کرے گا، اور مکے میں جا کر کے دم دے گا، قربانی کرے گا، تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ لیکن اپنے شہر میں رہ رہے مدینہ میں اور جانور بھیجا ہے کہ مکے میں جا کے ذبح ہو، تو اس کی حیثیت صدقے کی۔ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینے میں کرتے تھے 2 مہینے کی، لیکن آپ جانے والے قافلے کے ساتھ اپنے جانور بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ہدی احترام بیت اللہ کے لیے اور وہاں کے فقراء اور مساکین کی مہمانی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے آدمی دور دراز شہروں سے بھی بھیج سکتا ہے اپنے جانور تاکہ وہ ذبح ہو، اس کو بھی ہدی کہتے ہیں۔ اور حجاج کرام کے ذریعے جو قربانی وہاں کی جاتی ہے اس کو قربانی نہ کہہ کر کے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اس جانور کو اضحیہ نہیں کہتے بلکہ ہدی کہتے ہیں۔ یعنی یہ
जानवर तोहफा है, हदिया है हरम के लिए और हुज्जाज की तरफ से जबह किया जाएगा। जानवर वही है और शर्तें वही है जो हम कुर्बानी में करते, कि सारे जानवर रहते होने चाहिए, दूध के दांत टूट करके दूसरे दांत निकल जाए, सिवाय भेड़ के उसका गैर दता हुआ भी दूसरे जानवर के दते हुए के बराबर है। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रवायत है, इस बाब में पहली हदीस है। वो कहती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी का किलादा तैयार करती थी, बांटती थी, यानी रस्सी बुनती थी, बांटती थी। ऊन, रंगीन ऊन की रस्सी बांटती थी, तैयार करती थी। किलादा कहते हैं जो गर्दन में हार पहना जाता है, उसी को किलादा कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदी के साथ, यानी जो जानवर भेजा करते थे, और आप ऊँटी भेजते थे तो उसके अंदर किलादा, एक गर्दन में हार पहनाते थे, रस्सी के अंदर जूता एक टांग देते थे, एक जूता टांग दिया और उसको गर्दन में पहना दिया। ये अलामत होती थी कि ये जानवर हदी है, हरम मोहतरम में जाकर के जबा किया जाएगा, हरम मोहतरम में ये जानवर जबा किया जाएगा। ये एक अलामत हो उस जानवर की, ताकि इसका एहतराम किया जाए और एक पहचान हो कि ये हुदूद हरम में जबा होने वाला जानवर। और इसी के साथ, हदी के साथ एक इशार होता है। कोहान जो ऊंट का होता है, उसके दाएं या बाएं या तरफ लंबाई में चीर दें, अगर बाल हो तो बाल वहां से हटा करके लंबाई में चीर दें उसको, ताकि थोड़ा खून निकल जाए और वो खून जूते के मुख्तलिफ हिस्से में लगा दिया जाए और फिर उसको पहना दिया जाए, हार पहना दिया जाए। ये जो अमल चीरने का और खून जूते में लगाने का, इसको इशार कहते हैं, यानी अलामत, अलामत लगा देना। अगरचे बाद फुकहा ने इसको कहा कि ये मुसला है, जानवर की ताजीब है, जानवर को अजियत पहुंचाना है, लेकिन ला क़ियास मअन नस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहीहैन में मौजूद है। इसलिए उनका ये कहना कि साहब मुसला है, जानवर को अजियत पहुंचाना है, ये जायज नहीं है, ये क़ियास फी मुकाबलत नस, दलील के मुकाबले में है, लिहाजा ये क़ियास मरदूद है। थोड़ी तकलीफ अगर होती है चीरा लगाने में, तो एक अलामत है कि ये हदी है, मक्के में ज़बह किया जाने वाले जानवर। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के लिए, किलादा के लिए रस्सी तैयार करती थी। सुबह माशार को फिर मैं इशार करती थी, यानी मैं चीरा लगाती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें एक जूता टांग करके, जूते में खून लगा करके जा बजा और उसको ऊँट को लटका देते थे, या मैं ही लटका देती थी हाथ। सुबह बासा बेहल बैत, फिर उस जानवर को जो किलादा पहनाया हुआ होता, इशार किया होता, जूते में खून लगा दिया गया होता, उसको आप भेजते काबतुल्लाह के लिए, काबतुल्लाह की तरफ भेजते थे। जाने वाले के साथ किसी को वकील बना देते कि साहब ये ले जाओ और हमारी तरफ से इसको जमा कर देना। वह अकाम बिल मदीना, और मदीने में ही आप ठहरते, यानी आप मुहरिम नहीं होते। तो मालूम हुआ कि बगैर मुहरिम के भी आदमी दूर दराज शहरों से अपने जानवर हुदूद हरम में, मक्के में जमा होने के लिए भेज सकता है। लेकिन ये भेजने से आदमी मुहरिम नहीं होता या इहराम की पाबंदियों में नहीं आ जाता। फबा हरुमा अलैहि शैउन कान लहू हिल्लत, कोई चीज आप पर हराम नहीं होती जो जानवर भेजने से पहले आपके लिए हलाल होती थी, जानवर भेजने के लिए के बाद वो चीज हराम नहीं होती थी। यानी नाखून वगैरह तराशते ही रहते थे, बाल वगैरह तराशते ही रहते थे, और बीवी से जैसे बिस्तर पर आते थे उस तरीके से आते ही रहते थे। इहराम की पाबंदियां आप पर आयद नहीं होती थी। लेकिन अगर कुर्बानी का भी उसका इरादा है अपने शहर में, जैसे कि रमजान में कुर्बानी भी करते थे, तो फिर अशरा जिलहिज्जा में कुर्बानी करने वाले के लिए जो हुक्म है कि वो अपने बाल और नाखिन चांद निकलने के बाद न ले, जब तक कि कुर्बानी ना हो जाए उसकी। तो ये इस हुक्म के तहत वो 10 दिन में बाल नाखून नहीं लेगा, लेकिन उन 10 दिनों के अंदर भी बीवी उसके लिए हलाल है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो अगर भेजे, अगर कोई शख्स हादी भेजता है तो वो मुहरिम की पाबंदियों में आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये कौल गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते थे और शख्स हलाल की तरीके से रहते थे, इहराम की पाबंदियों में नहीं जकड़ते थे। अलबत्ता कुर्बानी करने के नतीजे में हिलाल जिलहिज्जा, चांद देखने के बाद जिलहिज्जा का बाल नाखून न काटने का जो हुक्म है, वो हुक्म आप पर होता, इस वजह से कि आप मुजाहिद होते, कुर्बानी करने वाले होते मदीने में। नहीं है कि भेजा है इस वजह से। अगर कोई भेजता है जानवर अपना मक्के में जबा होने के लिए और अपने शहर में वो कुर्बानी नहीं कर रहा है, तो फिर वो इस बाल नाखून छोड़ने का पाबंद भी नहीं है। तो ये समझ लीजिए।
क्या आप पर कोई चीज हराम नहीं हुई जो आपके लिए हलाल होती थी। गोया आशरा जिलहिज्जा में बाल नाखून सिर्फ नहीं तराशते थे, बाकी बीवी हलाल होती थी, आप इहराम की पाबंदियों में नहीं आते। तो मालूम ये हुआ कि दूर दराज शहरों से हदी का भेजना मक्का मुस्तहब है, चाहे आदमी खुद सफर न करे। और जब जानवर को भेजे तो मुस्तहब है कि उसको किलादा पहना दे, पुराना मशकीजा हो चमड़े का तो वो पहना दे, खजूर वगैरह की या दरख्तों की छाल वगैरह में जूता लटका दे, या वो छाल लटका दे, किसी लपेट दे गर्दनों के अंदर, ताकि वो यानी जो जानवर की आम हालत होती है उससे डिफर हालत हो, ताकि समझ में आवे कि ये कोई खास जानवर है। या कोई पुराना जूता है टूटा फूटा, उसके अंदर वो टांग दिया मोटी सुई से, और रस्सी उसके गर्दन में बांध दी मजबूत तरीके से ताकि वो गिरने ना पाए, और उसमें फिर फूल लगा दिया। तो ये इशार जो है ऊंट के साथ भी होगा, चीरा लगा करके खून लथपथ करके जूते में हार पहना देना, जूते का हार पहना देना, और गाय के लिए भी होगा। लेकिन बकरी के लिए इशार नहीं होगा, चीरा नहीं लगेगा। अलबत्ता एक हल्की फुल्की चप्पल या हल्का फुल्का हल्का जूता हो तो उसका किलादा पहना दिए, क्योंकि वो तो छोटा जानवर है, बकरा बकरी है, तो इसलिए उसको चीरा नहीं लगाना है, उस पर कट का निशान नहीं लगाना है, उसका खून नहीं निकालना है। और हल्का कुछ चप्पल वगैरह हो तो उसको पहना देना चाहिए, ताकि वो भी उसकी अलामत हो। तो इशार जो है इसको कहते हैं चीरने का, और चीर करके हल्का सा चीर करके खून जूते में लगा देने का। ये अमल सुन्नत है सिर्फ ऊंट के साथ, और गाय बैल के साथ, ऊंट उठनी के साथ, बड़े जानवरों के साथ। चलिए साहब, तो ये एक हदीस हुई कि गोया कि हदी भेजने से आदमी के ऊपर एहराम की ममनुआत मना नहीं होती, हराम नहीं होती। बाद मुतकद्दिमीन ने ऐसा कहा है कि वो मुहरिम हो जाएगा, लेकिन ये कौल सही नहीं। दूसरी हदीस है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन गनमन। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी हदी भेजी थी, हरम मदीने में रहते हुए बकरी भेजी थी कि वहां जाकर के ज़बह कर दी जाए। बाकी हमेशा आप ऊँट भेजा करते थे। अब ये जो जानवर आदमी लेके जा रहा है दमे तबत्तो की हैसियत से या दमे किरान की हैसियत से, जो वहां ज़बह करेगा, और एक ही सवारी उसके पास है जिसको बदना कहते हैं, बड़े जानवर को बदना कहते हैं, असल में ऊँट के लिए ये कहते हैं, लेकिन गाय वगैरह को भी, बैल को भी, चूंकि उसका जिस्म बड़ा होता है, ऊँट का जिस्म बड़ा होता है, मोटा जानवर होता है, बड़ा जानवर होता है, इसलिए उसको बदना कहते हैं, बड़े बदन वाला। तो अगर जरूरत हो तो आदमी उस जानवर को जिसको उसने मौकूफ किया है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए मक्के में, उस पर वो हस्ब जरूरत चढ़ सकता है और सवारी कर सकता है। ये नहीं कि वो पैदल जाए और बदना को हका के ले जा रहा है, अब कोई दूसरी सवारी भी उसके पास नहीं है, दूसरी ऊँटनी भी नहीं है, ऊँट मुजक्कर या मुअन्नस भी नहीं है कि जिसके ऊपर वो सवारी कर सके। तो कुछ चले कुछ चढ़े, कुछ चले कुछ चढ़े, इस तरह से चढ़ता हुआ चले जाए। अगर कोई दूसरी सवारी उसके पास नहीं हो, यानी दूसरा ऊँट नहीं हो जो हदी के साथ जा रहा है, तो फलियरकबहा बिल मारूफ, उम्दगी के साथ चले, मारे पीटे नहीं, दौड़ाए नहीं, बल्कि उसको आराम से चलने दें। और अगर दुधार ऊँटनी है तो जरूरत के मुताबिक रास्ते में उसको दूह करके खा भी सकता है। इमाम बुखारी ने इस पर बात भी कायम किया है कि वाकिफ अपने वक्त करदा माल से फायदा उठा सकता है। तो ये जो जानवर हमारा जमा होने के लिए जा रहा है, हमने उसको एक तरह से अल्लाह के लिए वक्त कर दिया है कि हम जाकर मक्के में हज तमत्तो करेंगे, हज करान करेंगे, वहां जबा करेंगे। लेकिन अगर हमको सवारी की हाजत है तो हम उस पर चढ़ के जा सकते हैं, दूध पीने की हाजत है और हमारा जानवर दुधार है तो उसका दूध गाड़ करके हम उसको पी भी सकते हैं। देखिए ये बात मैंने कही है वो तीसरी हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रजुलन यसूक़ु बदनतन फ़क़ाल इरकबहा क़ाल इन्नहा बदनह क़ाल इरकबहा फ़रअयतुहु राकिबहा युसायिरु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नअलु फ़ी उनुक़िहा। और एक रिवायत में वो क़ाल फ़ी सानियति अबी सालिसति इरकबहा वैलक औ वैहक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स को देखा कि वो बदना हका कर ले जा रहा है, यानी ऊंट हका कर ले जा रहा है हरम में जबा करने के। तो आपने कहा इरकब, सवार हो जाओ उस पर। उसने कहा या रसूलल्लाह इन्नहा बदना,
ये कुर्बानी का जानवर है, ऊँट है जो वहां से हो। यानी एहतराम, एहतराम देखिए कि वो जानवर जो अल्लाह के रास्ते में मक्के में ज़बह होगा, उसका एहतराम ये है उसके पेश नजर कि वो उस पर सवारी नहीं चाहता, आराम से ये चले, इसके ऊपर कोई बोझ लादा न जाए। आपने कहा सवार हो जाओ, एक रवायत में है कि 2 मरतबा कहा, 3 मरतबा कहा आपने सवार हो जाओ। अब वो यही कहता इन्हा बदना, इन्हा बदना, ये कुर्बानी का जानवर है। आपने कहा वही लग, वैल के माने तो होता है डांट के लिए गुस्से का इजहार करते हैं, तेरी खराबी हो, तेरी हिलाकत हो, ये एक तरह का की डांट है, नाराजगी के इजहार के लिए कहते हैं, लेकिन इसका हकीकी माना मुराद नहीं लेते। और इसी तरीके से कभी कभी कहते हैं वही हक कलमे तरहूम, अल्लाह तुम पर रहम करे। जब देखते हैं कि कोई आदमी बेवकूफी का काम कर रहा है तो कहते हैं कि अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुमको अक्ल सलीम अता करे, बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि कोई काम ऐसा है जो बहुत सही नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जगह पर वह हक कहते हैं। तो कलमे वह हक कुलमा ने कहा है, कलमे तरहूम है, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये हाजत कब होती है? जब आदमी खिलाफ औला कर रहा होता है। अब वैलक बिल्कुल गलत कर रहा है, कह रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहा है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो गुस्से के इजहार के लिए कहते हैं वैलक। लेकिन ये हरगिज माना हकीकी माना मुराद नहीं कि तो हिलाक हो जाए। तो ये अरब के जुबान के ऊपर ये कलमा ऐसे ही जारी होता है, और इसका हकीकी माना मुराद नहीं दिया जाता। तो कहा कि चढ़ जाओ, वैलक, चढ़ जाओ। फिर देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरतुल वदा में उनके ऊँटों के साथ साथ उसका भी ऊँट चल रहा है, और वो सवार है उसके ऊपर। वो नालुफी ओनो के है, उसकी गर्दन के अंदर एक जूता लगा हुआ है, वही जिसको किलादा कहते हैं, और उसके अंदर खून लगाया जाता है। कोहान को से चीर करके उसमें से थोड़ा सा खून निकाला, और खून निकाल करके जूते में लगा दिया। इसको इशार कहते हैं, जिसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुसला है, मुसला, जानवर को तकलीफ देना। मुमकिन है कि हमको हदीस मालूम न रही हो, वरना हदीस, और अगर मालूम रही है तो फिर किसी के कौल का कोई एतबार नहीं है, अगर सही हदीस से मालूम है। तो मालूम ये हुआ कि कुर्बानी के जानवर पर, जो कुर्बानी का जानवर वहां ज़बह होगा, हदी के नाम पर जा रहा है, हदी कहला रहा है, उस पर आदमी जरूरत सवारी भी कर सकता है। लेकिन हाँ माशाल्लाह, अगर आपके पास दूसरी सवारी भी है, एक ऊँट और आपके साथ है, तो उस पर चढ़ जाइए, इस ऊँट के ऊपर सामान लाद दीजिए, या इसको ऐसे ही खाली लेकर के चलिए, इसको हकाते हुए चलिए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर नहीं है और आप जरूरतमंद है सवारी की, तो सवार हो। तो ये सब हदी का हुक्म चल रहा है। अब आइए चौथी हदीस इस बाब में, अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत कहते हैं, अमरनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़ूम अला बुदनिही व अन अतसद्दक़ बिलहमिहा व जुलूदिहा व अजिल्लतिहा व अल्ला उअती अल जज़्ज़ार मिनहा शय'अन व क़ाल नहनु नुअतीहि मिन इंदिना। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके कुर्बानी के ऊँटों की निगरानी करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 100 ऊँट लेकर आए थे हज जबा करने के लिए, सवारी के अलावा 100 ऊँट कि मिला में आपकी तरफ से जबा हो। और आप कारिब थे, जैसा कि पहले बात गुज़श्ता दुरुस्त में आ चुकी है, फिर मजीद आएगी। आप थे, तलहा थे, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मालूम नहीं था, वो यमन से सीधे आए थे मक्का, तो उनको मालूम नहीं था कि कौन सी हज की कौन सी किस्म अफजल है। तो इसीलिए उन्होंने अपने एहराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम से जोड़ा, और ये कहा कि मैं उसी हज की नियत करता हूँ जो हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होगा। अब जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारिब हैं, उम्रा और हज के बाद वो अलग होंगे, तवाफ और सही करने के बाद मिना अरफात मुजदलिफा सबसे आकर के कंकड़ी लगाने के बाद कुर्बानी करने के बाद ही एहराम की चादर खोलेंगे। जाहिर है कि उन्होंने वही नियत की थी, और उनके साथ भी हदी का जानवर था, कुछ ऊँट पका करके वो भी लेकर आए थे अपने साथ यमन से। तो आपने कहा ठीक है तुम रहो एहराम पर, बाकी रहो। बाकी तमाम साहबा के साथ ये था मामला कि हज की नियत से तो पहुंचे थे, लेकिन हदी उनके पास नहीं थी। तो आपने कहा कि जिसके साथ हदी ना हो वो तवाफ सही करके उम्रे की नियत से बाल छोटा करके हलाल हो जाए, हज की नियत 8 तारीख को करेगा दिलचस्प से। बात वाजह है, पहले भी तफसील से बात आ चुकी है। तो यही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी थी कि कुर्बानी के हमारे जानवरों की देख रेख आप करें, निगरानी करें। अनकुम अला बुदनी, बुदनी, बुद्र जमा है बदना की, वल बुदना जअलना लकुम मिन शाइरिल्लाह,
یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں یا گائے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کی علامت ہے. تو بدن دال کے سکون کے ساتھ یا بدونے ہی، البدنو یا البدنو، دال کے سکون کے ساتھ یا دال کے دبے کے ساتھ، جمع ہے بدن ہے. تو میں آپ کی قربانی کے جانوروں کی نگرانی کی. اور جس دن آپ نے ذبح کیا تو 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کیا. 63 اونٹ. اور باقی اونٹوں کی ذبح کرنے کی ذمہ داری آپ نے ڈال دی علی کے ساتھ، تاکہ بقیہ اونٹ آپ ذبح کر دیں. اور پھر آپ چلے گئے اور کہا کہ کچھ گوشت لے کر کے کو پکائیں، شوربہ پیئیں گے، گوشت کھائیں گے، اب باقی سارا گوشت چھوڑ دیں، لوگوں میں صدقہ کر دیں. گوشت بھی صدقہ کریں، وہ جلودہا، اور اس کے چمڑے بھی صدقہ کریں. وہ اجلتہا، جلال کی جمع، جل اور جلال کہتے ہیں کمبل کو یا اس ڈھکن کو جو ڈھکن اونٹ کے جسم کے اوپر ڈالا جاتا ہے جاڑی وغیرہ سے حفاظت کے لیے. جانور کے اوپر ڈھکن ڈالتے ہیں نا جس سے اس کا پروٹیکشن ہو، جاڑی سے محفوظ رہ سکے. کمبل وغیرہ ڈالتے ہیں یا پشاور چادر وغیرہ اس کے سائز کی تیار کر کے اس کے بدن پہ ڈالتے ہیں. اس کو ہمارے یہاں کی مقامی زبان میں جھولی کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو آپ کہہ لیجیے ڈھکن، اونٹ کے اوپر یا بیل گائے کے اوپر اڑایا جانے والا کپڑا. تو کہا کہ وہ بھی خیرات کرو، چمڑے بھی خیرات کرو، اس کی جھولی بھی خیرات کرو، اس کا ڈھکن اور اس کا گوشت بھی سب خیرات کرو. وہ اللہ اعطی الجزار منہا شیئا، اور جزار کو، قصاب کو جو ہلدی اتارے گا اور بوٹیاں بنائے گا، اس کو اجرت میں گوشت یا چمڑا یا جل نہ دیا جائے. اجرت اپنے جیب سے دے. جو بھی قصاب کھال ادھیڑے گا، کھال اتارے گا اور بوٹیاں بنائے گا، اس کی محنت اور اس کی اجرت ہم اپنی پاکٹ سے دیں. وہ گوشت چاہے ہم یہاں قربانی کرتے ہو یا حاجی صاحبان حاجی پیش کرتے ہو، گوشت اجرت میں نہیں دیا جا سکتا. اور پوری اجرت دیجیے، جو اجرت ہے مناسب معقول جو آپ نے طے کیا وہ دیجیے. اگر کم اجرت دیں گے آپ تو وہ سمجھے گا کہ صاحب وہ گوشت لے لے گا، 1 کلو گوشت لے لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ صاحب چلو بکرے کا گوشت ہے 700-800 روپے کلو کا ہے، انہوں نے مزدوری کم دی ہے 300 روپے 400 روپے 500 روپے. اب دیہاتوں میں بھی 800 روپیہ مانگتا ہے 10ویں تاریخ کا، اب 12ویں 13ویں 11ویں کے اندر وہ 500 روپیہ لیتا ہے. اور شہروں میں 1000-1200 مانگتا ہے. اب اور دوسرے شہروں میں کیا ہے وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے یہاں بھی عام طریقے سے 1000 اور 800 روپے کا مطالبہ کرتا ہے 10ویں. تو ٹھیک ہے، کچھ طے کر کے 1000 روپیہ مانگ رہا ہے، چلو بھائی کچھ بھاؤ بٹا کر کے 800 روپے پر راضی ہو گیا. اب وہ گوشت اگر کچھ ہتھیاتا ہے تو بالکل غلط ہے. نہیں ہٹاؤ، تمہاری مزدوری تو ہم دے ہی رہے، تو ہم کیا نہیں کھائیں گے، ہم کو بھی تو تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو تحفہ ہم اپنی مرضی سے نہ دیں گے. تحفہ دیں گے یا اگر تم مسکین ہو تو تم پر صدقہ کریں گے، گوشت کا صدقہ کریں گے، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق، ضرورت کے مطابق تم کو دیں گے اگر تم اس کے مستحق ہو تو. لیکن اجرت میں گوشت دینا یا چمڑا دینا ہرگز جائز نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بھی نصیحت کی کہ اللہ اعطی الجزار، کہ آپ جزار کو، قصاب کو قربانی کے گوشت سے یا چمڑے سے اجرت میں کچھ نہیں دینا ہے. چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں وَنَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا، ہم قصاب کی اجرت اپنے پاکٹ سے دیتے تھے، اپنی طرف سے. لا الہ الا اللہ. 5ویں حدیث ہے اس کے اندر اسی باب میں کہ اونٹ کو کیسے ذبح کیا جائے. تو اونٹ کو جو قربان کیا جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں، اور گائے بکری اور دوسری جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو ذبح کہتے ہیں. ذبح اور نہر میں فرق. اونٹ کے ساتھ نہر کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں. اور وہ نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اگلی جو بائیں ٹانگ ہے، جس کو ہاتھ کہتے ہیں جانور کی اگلی 2 ٹانگوں کو، اس کی بائیں ٹانگ، اگلی بائیں ٹانگ کو مضبوط رسی سے، کسی مضبوط کھوٹے میں باندھ دینا، کسی کھمبے سے، مضبوط کھمبے سے مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دینا، اس طریقے سے کہ اونٹ 3 قدموں پہ کھڑا ہو. پچھلی 2 ٹانگیں ہو اس کی، اور اگلی ایک ٹانگ جو اس کی ہاتھ ہے دائیں وہ کھڑا ہو. 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا ہوا ہو اور بائیں ٹانگ اس کی سختی کے ساتھ باندھ دی گئی. اس طریقے سے وہ ایک طرح سے بے بس ہوتا ہے. اور پھر بڑی خنجر سے اس کے لبلبی کے اندر، بڑی گردن کے نیچے جو لبلبی ہے اس کی، اس کے اندر
छुरा को या वो जो आपके पास है नेजा, उसको पैवस्त कीजिए, पैवस्त कीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, यहां तक इसका खून गिरना शुरू हो। और खून गिरने के बाद जब सारा खून निकल जाएगा तो फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर, फईजा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिनहा, जब उसके पहलू जमीन पर गिर जाए तब उसकी बाकायदा उसकी खाल हटाओ और बूटियां बनाओ। तो गोया की सुन्नत रसूल क्या है कि ऊंट को खड़ा जबा करे, दरा हाले की उसकी अगली टांग बाई टांग बधी हुई हो, तीन पांव पे खड़ा हो। इसी को कहा कुरान ने कहा फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ा, सवाफ साफा की जमा, साफा उसी को कहते हैं कि जो तीन कदमों पर खड़ा हो। असल में ये साफिना जियाद ऊंट घोड़े की सिफत है। तेज घोड़ा हमेशा एक कदम को उठाए हुआ रहता है जमीन से, तीन कदम पे रहता है और एक कदम उसका हमेशा उठा हुआ होता है, बाई कदम वो बिल्कुल तैयार होता है कि जैसे ही राइडर आए और खोले और उसके ऊपर सवार हो, और वो कदम गोया की तरफ जंप करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए वो तैयार। तो ये असल में घोड़े की सिफत। बहरहाल तो तीन कदमों पे ऊंट खड़ा होना चाहिए, एक अगली दाहिनी टांगे, दाहिनी टांग और तीसरी दो टांगे, और बाई टांग उसकी बधी होनी चाहिए, और फिर उसके गर्दन के नीचे जो यहाँ सीने के पास लुबलुबी है उसके अंदर पैवस्त की खंजर, जहां तक कि उसका सारा खून गिर जाए, फिर वो आराम से जमीन पे आ जाए, सर्द हो जाए, उसके बाद उसको काटिए थालूदानी। और बकिया इसके अलावा जो जानवर है, गाय बैल है या बकरा बकरी छोटा है, उसको उसके बाएं करवट लेटा दीजिए और मजबूती से उसको पकड़ लीजिए। उसकी टांगों को भी, अगर गाय वगैरह है बैल है तो उसको बांध दीजिए ताकि वो भाग ना पाए, और मजबूती के साथ उसको दो चार आदमी पकड़ के दबा दे, और दबा करने वाला अपनी टांग को, दाहिनी टांग को उसके जिस्म पर रखे, उसके शोल्डर पर, और फिर गर्दन पकड़े, और फिर दाहिने हाथ से छुरी लेकर के बिस्मिल्लाह अल्लाह। तो लेटा करके जो हम बाएं करवट लेटाते हैं, या अगर लेफ्ट हैंडर है तो उसको सहूलत है दाहिने करवट लेटाने का कि वो जानवर किबला रुख हो, तो लेटा के जो जबा करते हैं गाय बैल को, बकरा बकरी को, भेड़ भेड़ी को, दुम्बा को, तो इसको जबह कहते हैं। और ऊंट को जो खड़ा होकर के हम जबह करते हैं तो उसको नहर कहते हैं। ये फर्क। बहरहाल सुन्नत रसूल ये है कि ऊंट को खड़ा जबह किया जाए, जैसा कि बताया। तो एक शख्स को देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ने हदीस देखी, जियाद बिन जुबैर قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم या सुन्नत मोहम्मद। जियाद इब्न जुबैर कहते हैं कि मैंने इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु को देखा कि उनका गुजर एक शख्स के पास से हुआ, अता अला रजुल, वो एक शख्स के पास आए, यानी एक शख्स के पास से गुजर हुआ, उसने अपने ऊंट को अनाख बदलहु अजलसा, उसने अपने ऊंट को बैठा रखा था, और बैठा करके उसको वो नहर कर रहा था। तो आपने कहा ई बात छाते में मुकैद है, इसको उठाओ उठाओ, खड़ा करो, और इसकी एक टांग को बांधो, इसको उठाओ खड़ा करो, दरा हाले के उसकी एक टांग बंधी होनी चाहिए, और वो टांग अगली बाई। सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खिलाफ सुन्नत कर, अगर नहीं कर सकता है तो बैठ के कर ले, मजबूरी है। अगर नहीं खड़ा करने की सलाहियत है या उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस तरीके से दबा करे, तो ऊँट बैठा हो, उसकी टांग बांध दे और मजबूती के साथ हिफाजत करे ताकि वो उठे नहीं, और तेज खंजर से बिस्मिल्लाह करके चुभा दे उसके हलक के नीचे, यानी लुबलुबी में, सीने के पास, लंबी गर्दन के नीचे। लेकिन सुन्नत है कि खड़ा कर, अगर खड़ा नहीं कर सकते हो तब फिर वो बधा हुआ हो और बैठे करके दबा बैठ सकता है, लेकिन सुन्नत ये है कि खड़ा हो। तो ये हदी के ताल्लुक से बात, हदी के ताल्लुक से बात। अब एक बाब लाए हैं यहाँ पर, बाबुल गुस्ल लिल मुहरिम, मुहरिम के लिए गुस्ल करने का हुक्म। तो हालत इहराम में आने के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। इहराम की चादर पहनना हो तो गुस्ल कर लीजिए। इवन औरतें जो इहराम में जा रही हैं, अगर वो हाइजा भी हैं, तो इहराम की नीयत से कपड़ा पहनने के लिए बेहतर है, उनके लिए भी सुन्नत है कि वो गुस्ल, हाइजा हो, निफास वाली हो, तो वो भी गुस्ल करके कपड़ा। और मर्द के लिए तो है ही। इसके अलावा लंबा सफर है, मिसाल के तौर पर ऊँटों पे जा रहे हैं, 8 दिन के बाद मक्का पहुंचेंगे, 10 दिन के बाद मक्का पहुंचेंगे, तो बीच में आप ठंडक हासिल करने के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए, तबीयत में हशाशत बशाशत लाने के लिए
या ऐसे ही मान लीजिए कि आदमी मुहतलिम हो गया हो तो गुस्ल उस पर वाजिब है तो उसके लिए, या यूं ही तरफुहन रिफ्रेशमेंट के लिए, या तबर्रुदन अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए, गर्मी पड़ रही है तो आदमी गुस्ल कर सकता है। हालत इहराम में गुस्ल करना जायज, मशरू। मक्का पहुंच गए हैं तो काबा के अंदर आने से पहले गुस्ल करके इहराम की चादर दूसरी दो है उसको बदल करके आगे, ताकि पसीना वगैरह खत्म हो जाए। तो ये सब जायज है, हालत इहराम में गुस्ल करने में कतन कोई मुजायका नहीं। इस मसले में मकाम अबवा में, जो मक्का और मदीने के दरमियान एक मशहूर जगह है, और आज भी वो उस इसी नाम से वो जाना भी जाता है। तो यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और मिसबर बिन मखरमा, इन दोनों के दरमियान तकरार हुई, बहस हुई, इल्मी बहस जिसको मुनाजरा कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कायल थे कि मोहरिम गस्ल कर सकता है, कोई मुजाकर नहीं। और मिसबर कह रहे थे कि नहीं, बिला जरूरत गस्ल नहीं कर सकता। क्यों? उनका गुमान ये था कि आदमी गस्ल करेगा, सर पे पानी गिराएगा, हाथ आगे पीछे करेगा तो बाल टूटेंगे, ये समझते थे। दूसरी वजह है कि आदमी हालत इहराम में जा रहा है, अल्लाह के लिए जा रहा है, सफर कर रहा है, तो बाल उसके बिखरे हों, गुब्बारा आलूद हो, जैसा कि हदीस में आया है कि जाऊनी शुअसन गुबरन, ये देखो मेरे बंदों को ये आए हैं बड़ा गंदा बाल, बड़ा गंदा हाल, गर्द गुबार से अटे हुए मेरे बंदे आए हैं, हमसे मुझसे मगफिरत का सवाल कर रहे हैं, फरिश्तों गवाह रहो मैंने उनको बख्श दिया। तो ये सब कुछ चीजें थी उनके जहन में। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते थे कि साहब वसूल कर सकता। अब इसका फैसला कैसे हो, तो किसी अपने से बड़े आलिम के पास जाया जाए, रुजू किया जाए, अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो, यही ना इसका हल है। तो चुनांचे जो तफसीली बातें हैं हदीस के साथ पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन हुनैन कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और मिसबर बिन मखरमा का इख्तलाफ हुआ मकाम अबवा में गुस्ल के मसले को लेकर के मुहरिम हालत इहराम में गुस्ल कर सकता है कि नहीं। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते थे गुस्ल करेगा और सर भी धोएगा, ये नहीं कि गर्दन के नीचे धो, बल्कि बाकायदा सर से गुस्ल करेगा और सर पर हाथ आगे पीछे ले जाएगा, हाथ को फेरेगा सर के ऊपर, दौड़ाएगा हाथ को। हम इस पर कहते थे कि नहीं, अगर गुस्ल करता है तो ला यगसिल रासह, मुहरिम अपने सर को ना धोए, वही के साथ बाल टूट के आएगा हाथ में। काला अब्दुल्ला बिन हुनैन कहते हैं कि मुझे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजा, वही मकाम अबुआ में सब लोग ठहरे हुए थे। कहा कि जाकर के अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से पूछो, वो कदीमुल इस्लाम है, उनको हदीस मालूम होगी। तो उसने इत्तेफाक कर लीजिए, अल्लाह का ऐसा करना, मसले को अल्लाह ताला ने कैसे आसान किया कि जिस चीज का सवाल करने के लिए अब्दुल्ला बिन हुनैन गए थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास के फरिश्तादा और मैसेंजर की हैसियत से वो चीजें वहां मौजूद थी, वो चीज वहां पहले ही से मौजूद थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी गस्ल ही कर रहे थे, जबकि वो भी हालत है राम में। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि कुएं पर दो खब्बा लगा हुआ होता है, कर्म जिसको कहते हैं, दो खब्बा ऐसे लगा होता है, बीच के अंदर उसके लकड़ी होती है, उसके बाद उसके एक राउंड शेप चीज होती है जिसके ऊपर मोटी रस्सियां लगी होती है, मोटी रस्सी, और उसके निचले एक सिरे के अंदर डोल बकेट जिसको कहते हैं, जिसे कुएं से पानी निकाला जाता है, मजबूती से बंधा हुआ है, और वो लटका रहे हैं, उसके अंदर पानी गिरा रहे हैं, और फिर रस्सी को खींच खींच के पानी ऊपर ला रहे हैं और गुस्ल कर रहे हैं, और पर्दा किए हुए हैं, ताकि बदन भीगने के बाद हो सकता है कि इजार बदन में चिपक जाए तो मुमकिन है कि बेसंसनी हो। तो इसलिए बेहतर है कि आदमी खुली जगह में अगर गुस्ल कर रहा हो तो कुछ कपड़े से अपने को पर्दा कर ले, ढके। तो कहा कि मैंने पाया उनको कि दो खंबे के दरमियान, जिस तरीके से बाल्टी में कुएं से पानी निकाला जाता है, जो शक्ल मैंने बताई कि करनैन कहते हैं, दो खंबा हो और बीच के अंदर एक खशब लकड़ी डाल दी जाए, और उसके ऊपर एक गोल चकड़ी हो जिसके अंदर से रस्सी जाती हो कुएं के नीचे, या बगैर उसके हो सिर्फ लकड़ी के ऊपर से गिराते हो, लकड़ी के सहारे उसको खींचते हो और फिर उसको इस्तेमाल में लाते हो, और वो कपड़े से पर्दा करके गुस्ल कर रही। फसल्लम तो अलैहि, अब्दुल्ला बिन हुनैन कहते कि मैंने उनको सलाम किया। तो कहा कि कौन? तो कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन हुनैन,
सिर्फ अगर कोई कहे कौन, तो मैं, हम हैं, मैं हूं, नहीं, ये जवाब नहीं। नाम लीजिए अब्दुल्ला बिन हुनैन, नाम लीजिए अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, नाम लीजिए, या कहिए कि मैं अब्दुल्ला, मैं अब्दुल रहीम, मैं शम्स, कोई नाम लीजिए। मैं के साथ अपना नाम लीजिए, सिर्फ मैं मत बोलिए। मैं क्या होता है और हम क्या होता है, रात हो या दिन हो, कोई भी अगर आदमी अंदर से पूछता है कौन, तो आप नाम लीजिए कि मैं फला। ला इलाहा इल्लल्लाह। और मुद्दा बताया कि मुझे आपकी तरफ भेजा है इब्न अब्बास ने, वो आपसे ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इहराम में अपना सर कैसे धोते थे। यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास को तो मालूम है कि सर धोते थे, लेकिन कैसे धोते थे वो आपने देखा होगा, तो आप बताइए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु जिस कपड़े को पर्दा करके वसूल कर रहे थे, उस कपड़े को नीचे किया कि अब सर अब्दुल्ला बिन हुनैन के लिए जाहिर हो जाए। और एक शख्स को कहा कि पानी गिराओ, एक शख्स सर पे पानी गिरा रहा है, और हजरत अबू अय्यूब हाथ को, एक हाथ को आगे ले जा रहे हैं, एक हाथ को पीछे ले रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, और वो सर पे पानी डाल रहे हैं। फता था, वो कपड़े को नीचे किया उन्होंने थोड़ा, यहाँ तक कि मेरे लिए उनका सर जाहिर हुआ। सुम्मा क़ाल इंसान यसुब्बु अलैहि अल-मा, एक शख्स कहा जो वहां था, कहा कि मेरे सर पे पानी गिराओ। फसब्बा अला रासिही, उसने आपके सर पर, यानी अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु के सर पर पानी गिराया। सुम्मा हर्रका रासहु बियदिही, और दोनों हाथ से अपने सर को, अपने बाल को हरकत दिया, लेकिन यूं 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 बहुत ताकत से, जोर जोर से उस पर रगड़ना नहीं चाहिए हाथ को, ताकि यूं भी जिंदा बाल टूटे। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता हाथ को आगे पीछे अगर आदमी कर रहा है, इवन साबुन लगाने की जरूरत है तो साबुन लगा के भी अगर कर रहा है, अब कुछ बाल यूं ही हाथ में बगैर मजबूती से, ताकत से रगड़े बगैर भी आ जाते हैं, इसका मतलब है कि बाल मुर्दा है आपका। बाल तोड़ना नहीं है, मजबूत तरीके से पूरी कुवत के साथ अपने हाथ को बालों पर रगड़ना नहीं है। आहिस्ता 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 साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, या हाथ को आहिस्ता आहिस्ता फैलाया। अगर कुछ बाल आता है तो इसका मतलब ये है कि वो मुर्दा बाल है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सर को दोनों हाथ से हरकत दिया, ये नहीं कि सिर्फ पोलेट्री दौड़ा रहे हैं, अपने सर को थोड़ी हरकत भी दे रहे हैं। तो अकबल बेहमा वाद बढ़ा, दोनों हाथ को आगे ले जा रहे हैं, पीछे ला रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, पीछे ला। सुबह मकाल, फिर उन्होंने कहा हाँ कदा रही तो हुई अपन, जैसा मैंने भी किया ना, वैसे ही मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्ल करते हुए और सर धोते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। आंखों देखा हाल हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने बताया, और अब्दुल्ला बिन हुनैन ने भी अपनी आंखों देखा हाल जा करके हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को सुनाया, जहां मिसवर भी मौजूद थे। जब ये तफसील जब आई गुफ्तगू की, तो मिसवर बिन मकरमा ने सरेंडर किया, और हदीस जब आ गई, दलील आ गई, तो अपना इख्तलाफ खत्म कर दिया। यही होना चाहिए कि किसी मसले में अगर दो आदमी के दरमियान इख्तलाफ हो, डिस्प्यूट हो, हदीस अगर पेश कर दी जाए, सही हदीस हो, तो इख्तलाफ को खत्म कर देना चाहिए। किसी आम आदमी के लिए, किसी आलिम की राय के लिए, गैर नबी के लिए, आम आदमी का तो गैर नबी के लिए आदमी को कभी भी मुतासिब नहीं होना चाहिए। तासुब अगर है तो अल्लाह और उसके रसूल के कौल के लिए होना चाहिए, और अपने इख्तलाफ को खत्म करना चाहिए दलील की रोशनी। अब उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की इल्मियत और काबिलियत को देखते हुए मिसवर ने कहा, ला उमारी का बाद अब इसके बाद मैं आपसे कभी बहस नहीं करूं, मैंने मान लिया, आपका लोहा मान लिया। चलिए साहब, तो मालूम हुआ कि हालत एहराम में आदमी गुस्ल कर सकता है। एक दो हदीस और देखते हैं। बाबू फस्खिल हज इलल उम्रा, इसमें एक छोटा सा बाब है, एक दो हदीस पर बाब लगाया है कि आदमी हज की नीयत से मक्का पहुंचे और हज को फस्ख कर दे, यानी उस नीयत को फस्ख करके उम्रे में तब्दील कर दे, यानी उम्रा करके हलाल। हज के अरकान तो 8 के बाद शुरू हो गया, 8 से शुरू होंगे। मैं अरफात मुजल्फा जाएगा, कंकड़ी मारेगा, उसके बाद वो बाल नाखून तराश करके, बाल मुड़वा करके हलाल होगा। लेकिन हदी नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जिसके पास हदी नहीं है, वो तवाफ और सही करके अपना बाल छोटा करवा ले, हलाल हो जाए। हदीस में है कि लोगों ने बहुत ही ज्यादा इल्हाह किया, नहीं यार रहने दीजिए, हमको एहराम की चादर में रहने दीजिए, हम इबादत के लिए आए हैं। लेकिन आपने कहा कुछ नहीं, एक तरह से आप कहिए कि हुक्म, ऑर्डर, कि आपको खोलना ही है एहराम, इसके आगे कोई दूसरी बात, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं।
جس کے ساتھ ہدی ہے وہ باقی رہے احرام میں، قربانی کے بعد حلال ہو. جیسے میں میرے ساتھ کرے کہ مجھے دیکھو، میں نے اپنے سر کو چپکا رکھا ہے، ہدی کو قلادہ پہنا رکھا ہے، اشعار کر رکھا ہے، میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ ذبح نہ کروں. لیکن جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے. سب پوچھتے تھے لبیک اللہم حجن کہہ کر. کچھ لوگ تھے جو عمرتن کہہ کے چلے تھے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج جو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے گئے تھے اور ہدی نہیں ہے، یا جو صرف حج کی نیت سے پہنچے تھے، آپ نے صفا مروہ کی صحیح کے بعد کہا اب بال چھوٹا کرو اور حلال. اور دیکھا کہ لوگ اپلائی کرنے میں، آرڈر کو ماننے میں ذرا سا ٹال مٹول کر رہے ہیں. حیرت اور استعجاب ہے ان کو کہ کیسے ہم آئے تھے حج کے لیے اور احرام کھلنے 4 دن بچا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کا ہل مراد ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ سلا ہوا کپڑا پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، یعنی بیوی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم حج میں اس طرح کا عمل کریں حج کے ایام میں. اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم مینا جائیں، عرفات جائیں، اور ہمارے اندر ابھی رات بیوی سے ملنے کی وجہ سے ہمارے اوپر شہوت غالب ہو. کہا کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں سنتے، سب کو حلال. کہ یہ جو لوگوں نے حج کی نیت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت کو فسخ کرا دیا اور سب کو عمرہ کروا کر کہا حلال ہو جاؤ، پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کرنا. یہی ہے فسخ الحج الی العمرہ، حج کو فسخ کر دینا، عمرہ میں تبدیل کر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سن لیجیے پہلے، اور یہ روایت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور مزید پڑھیں گے. اور اس طرح کی حدیث کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حج کی نیت کو فسخ کروا دیا، عمرہ کر کے حلال ہو جانے کے لیے آپ نے فورس کیا. اس طرح کی حدیث تقریباً 18-19 صحابہ سے ملی، متواتر روایت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے حج کی نیت کی. وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ هَدْيٌ، اور کسی کے ساتھ ہدی نہیں تھی جو جانور وہاں ذبح ہوگا مینا میں اور مکے میں، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طلحہ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے. ابھی بتایا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حج کی کون سی قسم اصل ہے، کیا نیت کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ احللت بما احل به، سے تو میری نیت وہی جو میرے نبی کی نیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کی جس قسم کی نیت کی ہے میری بھی وہی نیت. بہرحال فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کب مکہ پہنچ کر جب طواف اور سعی کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ کرو، طواف کر لو، بال چھوٹا کراؤ، یعنی طواف کے بعد صحیح کرو اور صحیح کرنے کے بعد بال چھوٹا کراؤ اور حلال کرو. الا من کان معه الهدی، سوائے اس شخص کے جس کے پاس ہدی وہ باقی رہے احرام کی طرح. صحابہ نے کہا ننطلق الى منى وذكر احدنا يخطب، ہم مینا جائیں اس حال میں کہ ہمارا ذکر مادہ ٹپکا رہا ہو، یعنی ہم پر خواہش غالب ہو، شہوت غالب ہو. لا الہ الا اللہ. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے تسلی دینے کے لیے اور ان کے دل و دماغ میں جو خلجان تھا، جو بے چینی تھی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بیوی سے مقاربت کرے اور احرام کی چادر کھولے، تو کہا کہ آپ نے کہا کہ لم استقبلت من امری مستقبل، جو بات میں نے جانی اپنے معاملے میں جانی ہے بعد میں اگر وہ میں پہلے جان لیتا، یعنی حج تمتع کی افضلیت کا جو علم مجھے ہوا ہے اگر وہ پہلے سے علم ہوتا تو میں خود بھی ہدی نہ لاتا. کاش کہ میرے ساتھ بھی ہدی نہ ہوتی. یہ تمنا آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ حج تمتع افضل. اور میں بھی حلال ہو کے آپ کو دکھاتا. آپ کچھ اور بات سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. تو اب جب اتنی بات آپ نے کہی تو سب نے فوراً ہی بال چھوٹا کرانا شروع کیا اور احرام کی چادر سے باہر آ گئے، عمرہ کر کے حلال ہوئے. پھر 8 تاریخ کو حج کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ آئی تھی عمرے کی نیت سے، لبیک اللہم عمرۃ کہا تھا، لیکن یہ حائضہ ہو گئی. واقعہ مختصر کر دیا ہے یہاں. مقام سرف میں جب آ گئی، مکے سے قریب تر مقام ہے، تو حائضہ ہو گئی. پورا مدینہ سے چل کے آ گئی تھی اٹھ پر
अब जब कुछ दूर कुछ फासले पर मक्का रह गया था तो हाइजा हो गई, अब रोने लगी। पूरी तफसील पहले बता चुके, नहीं सर क्या क्यों रोती हो, ये तो मुकद्दर है औरतों की। चलो देखते हैं, पाक हो जाओगी तो मौका होगा तो तवाफ सही कर लेना, नहीं तो फिर तमाम काम जो हाजी करते हैं करोगी, जब पाक होगी तो तवाफ कर लोगी। उम्र अभी छोड़ दो, उम्र पर हज की नीयत का इजाफा कर लो, बालों का नहा धो करके हाथ से या हल्की कंघी से, मोटे दांतों से कंघी कर लो। उम्र के अरकान छोड़ दो, मतलब करने का कि उम्र पर हज की नीयत का इजाफा करो। ये नहीं है कि हजरत आयशा को कहा कि हज की नीयत करो यानी मुफरिद हज हो, नहीं। अभी उम्र के अरकान छोड़ दो, क्योंकि काबा में जा नहीं सकते, और तवाफ के बाद सही करनी है। तवाफ नुसुक के बाद जो किसी इबादत का रुकन है तवाफ, जैसे उम्रे का, तो उसके बाद ही सही करनी है। हालांकि सही के लिए पाकी शर्त नहीं, बहरहाल तरतीब है कि उम्रे में पहले तवाफ करेंगे तब सही करेंगे। इत्तेफाक कहिए, अल्लाह की मर्जी। इत्तेफाक क्या है, अल्लाह की मर्जी। मुकद्दर यही था कि मीना के निकलने का दिन हो गया, 8 दिन हो गया, लेकिन वो पाक नहीं। आपने कहा कि चलो उम्रे पर हज की नीयत का इजाफा कर लो, और उम्रे पर हज की नीयत का इजाफा कर लेने से आदमी क्या होगा, कालीन हो जाएगा, मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर दूंगा। अब उन्होंने किरान कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, किरान कहेंगे। और इसकी वाज़ेह दलील मुस्लिम के अंदर यह हदीस है कि जब 10 तारीख को वो हज से पाक हुई, आई काबा, तो उन्होंने तवाफ किया, 7 चक्कर लगाया, और सफा मरवा की सही की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप उनको कहा कि इन्नमा तवाफो के बिलबैत व सअयो की यकफी लिहज्ज की व उम्रत की जमिया। आज का तुम्हारा ये तवाफ, एक मरतबा जो 7 चक्कर का तवाफ लगाया है, और 7 सही जो तुमने की तवाफ की, सही की सफा मरवा के दरमियान, तुम्हारा काबा का तवाफ करना और सफा मरवा की सही करना, हज और उम्रा दोनों के लिए काफी हो गया। साफ मालूम ये हुआ कि हजरत आयशा ने उम्रे की नीयत फस्ख नहीं की थी और हज इफराद नहीं किया था, बल्कि हज के अरकान छोड़ा था। उतरकिल उम्र का मतलब कि उम्र के अरकान की अदायगी छोड़, इस पर हज की नीयत का इजाफा करके कारिना बन जा, हज करान कर। जब तो आपने फरमाया कि 10 तारीख का तवाफ और सही तुम्हारे हज उम्रे के लिए काफी हो गया करा। लेकिन अब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा 14 तारीख की रात में जब वादी मुहस्सब में ठहरे, 13 को कंकड़ी लगा के आ गए, 14 की रात में कहा लोगों को इशा के बाद की जाओ, आधी रात के बाद से तवाफे वदा करके आते जाओ, सुबह फजर की नमाज यहाँ हम मिलना चाहते हैं, सब लोग साथ रहे, फजर की नमाज के बाद मदीने के रास्ते पर निकल जाएंगे, क्योंकि वहां से रास्ता सीधा था, वहां से निकलना आसान था। तो उस रात में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक उम्रा और करना चाहते हैं। हर चंद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा हज उम्रा तो हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सहेलियां, हमारी बहनें, यानी हमारी सौकनें 2 तवाफ और 2 सही करके जाएंगी, और मैं एक तवाफ सही करूंगी, नहीं आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक उम्रा करूंगी। जैसे इल्हा किया, चिमट गई वो। तो आपने कहा उनके भाई अब्दुल रहमान से कहा रजी अल्लाह अन्हु कि ले जाओ इनको मकाम तनीम से, जो हदूद हरम के बाहर है, वहां से उम्र की नीयत करा कर ले आओ, और ये तवाफ और सही करके बाल एक पोड़, उंगली के पोड़ के बराबर कट करके वो आ जाए, और कहा कि फजर की नमाज में यहाँ से होना। वही है, हजरत आयशा कहती है कि मैंने भी तमाम मनासिक अदा की, क्योंकि अरफात मुजदलिफा ही में तो जाना था, नमाज तो पढ़ना नहीं था, हज के लिए तो नमाज है नहीं। गैर अन्नहा लम ततुफ बिल बैत, सिर्फ काबे का तवाफ नहीं किया। जब वो पाक हुई तो काबा का तवाफ किया। अब वो बीच की सारी बातें मैंने आपको बता दी कि अब जब तवाफ सही कर लिया तो आपने कहा कि उम्रा हज हो, और हज दोनों का तब हो गया, क्योंकि कारीन के लिए एक ही तवाफ जरूरी है, एक ही मरतबा सही जरूरी है। पहले भी बता चुके हैं कि कारीन जब मक्का आता है और जो तवाफ करता है, वो तवाफ उसका सुन्नत और मुस्तहब होता है। अगर उसके साथ उसने सही कर लिया तो सही उसकी एक कंप्लीट होगी। अब 10 तारीख को वो सिर्फ 10 को या 11 को 12 को जब करे, सिर्फ तवाफ इफादा, तवाफ जियारत की ऊपर वाजिब है, सफा मरवा की सही नहीं। लेकिन जो हज हाजी तमत्तो करता है, वो सफा मरवा की सही भी करता है, बाल छोड़ा करके हलाल होता है, ये उम्रा हो गया उसका। और 8 तारीख को हज की नीयत से निकला, तो 10 तारीख को या 11 तारीख को जब भी लौटेगा काबा का तवाफ करने के लिए, तो तवाफ भी करेगा, सफा मरवा की सही भी करेगा। तो साहब जब मैं पाक हो गई, काबा का मैंने तवाफ कर लिया, तो कहा या रसूलल्लाह, लोग निकलेंगे हज और उम्रा दोनों करके, और मैं निकलूं सिर्फ हज करके।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया कि वो इनको लेकर निकले मकामी तनईम की तरफ। फातमर तो बादल हज, तो मैंने हज के बाद उम्रा किया। ये सिर्फ 1 लाख से ज्यादा का मजमा था, उसमें सिर्फ यही एक वाकया है कि हज के बाद मकाम तनईम से, जिसको आजकल मस्जिद आयशा कहते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ने उम्रा किया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो अलग उम्रे की नीयत करके मक्का पहुंची थी, वो उम्रे को अदा नहीं कर सकी। अगर हज के बाद ही उम्रा करना, जैसा कि लोग करते हैं बार बार, जिंदा की तरफ से भी करते हैं जो सेहतमंद है, मुर्दे को तो छोड़िए, और बार बार जाते हैं 10 रियाल का 15 रियाल का उम्रा करके आते हैं, ये अमल सही नहीं। उम्रा मक्किया जो लोग करते हैं ये सही नहीं, सहाबा इकराम से साबित नहीं। अगर उम्रा होता तो वो भी जाते और उम्रा करके आ जाते, लेकिन सिर्फ इतने बड़े काफिले में, हजरतुल वदा के 1 लाख से बड़े काफिले के अंदर सिर्फ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो उज्र था, जिसकी वजह से उन्होंने उम्रा नहीं अदा किया था अलग से, तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगी। तो अगर किसी औरत के साथ ऐसा मामला पेश आता है कि वो उम्रा की इरादा से जाए और नहीं पहुंच सकी या हाइजा हो गई, तो ठीक है, वो किरान की नीयत कर ले, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया। कुर्बानी तो तमत्तो वाले को भी देना है, किरान वाले को भी देना है, और अगर वो चाहे तो एक उम्रा मकाम तनईम से कर। और इसी हदीस से ये भी इस्तेदलाल किया गया कि अगर उम्रा मक्के वाला करेगा तो हुदूद हरम के बाहर जा करके आए, क्योंकि उम्रा के तमाम जो अरकान है वो काबा के अंदर अदा होते हैं। सिर्फ एक जो इहराम है वो हिल से होगा, हुदूद हरम के बाहर से होगा। बाकी यहाँ तवाफ और सही तो उसका हरम ही के अंदर है। और हाजी अगर मक्के से हज करता है या मक्के वाला करता है, तो वो अपने घर से ही इहराम बांध के चलेगा, क्योंकि उसको अरफात निकलना है। अरफात हुदूद अरफा जो है हुदूद हरम से बाहर है, तो इसलिए हज के हरम से हिल में जा रहा है, और उम्र की अरकान चूंकि हज हरम में हो रहे हैं, तो इसलिए उसको हिल से हरम में आना है। अब कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं, उम्र हो कि हज हो, मक्का वाला अहलु मक्का मिन मक्का। लेकिन जमहूर का कौल ये है कि हुदूद हरम से बाहर उम्र की। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक अलग से उम्रा किया, ये आपने समझा। और ये भी समझा कि सहाबा किराम जिनके साथ हदी नहीं थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हज की नीयत को उम्रे से तब्दील कर दिया। अब फुकहा में इख्तिलाफ है कि ये जो आपने हज को उम्रे में बदलवाया, ये सिर्फ सहाबा किराम के साथ खास था या हमेशा के लिए? तो तीनों इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि सिर्फ सहाबा के साथ खास था, उसी साल के लिए खास। और दलील में हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल पेश करते हैं जो इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है और मुस्लिम ने नकल किया है कि सहाबे किराम का उस साल हज तमत्तो करना, यानी हज की नीयत को उम्रे से तब्दील कर देना और फिर 8 तारीख को हज करना, ये सहाबा के साथ था। ये अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, याद रखिएगा, हदीस नहीं, ये सहाबा के साथ खास था, वो ये कहें, ये उनका कौल है, उनकी राय है। और यहाँ 18-19 हदीसें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि इसने हदी नहीं अपने साथ से जो नहीं लेकर आया, उसको इहराम खोल करके हलाल होना ही होता है। और एक आध रवायत है सुनन वगैरह के अंदर, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नकल की जाती है कि आपने, लोगों ने पूछा कि रसूलुल्लाह ये क्या हमारे लिए है या सबके लिए है, और हमेशा के लिए? आपने कहा नहीं, तुम्हारे लिए खास है। ये हदीस सनद सही, जबकि उसके मुकाबले में सही रवायतें आपके सामने कि आपने सबको तुरवाया। और ये वाकया हज्जतुल वदा का, तो अब उसके बाद क्या मनसूख हो जाएगा ये हुक्म? क्यों मनसूख होगा? क्योंकि उसके बाद तो आपने हज ही नहीं किया। दूसरे के सुराका बिन मालिक की रवायत है कि उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, इस साल जो हमने हज की नीयत को उम्रे से तब्दील कर दिया है, ये हमारे लिए है या तमाम के लिए? लियामतिल उम्मा, कहा लियामतिल उम्मा, तमाम उम्मत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा हज में दाखिल हो गया इला अबदिल आबाद, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के। तो इसलिए बिल्कुल राजिह, रोज़े रोशन की तरफ वाज़िह कौल है इमाम अहमद बिन हंबल का, उलमाए अहले हदीस का, उलमाए ज़ाहिदिया का, कि अगर कोई शख्स बगैर हदी के आता है तो उसको उम्रा करके हलाल, उम्रा करके हलाल, और 8 तारीख को हज करना, हज की नीयत से जाना। अगर हदी दमे तमत्तो दे सकता है तो ठीक है, और नहीं तो 3 दिन हज में रोजा रखे, 7-8 रखे, नहीं तो 11-12-13 को रखे याम तशरीक को। ऐसे ही लोगों के लिए सिर्फ जायज है याम तशरीक को रोजा रखना, जो हज दमे तमत्तो नहीं दे सकते हो और हज से पहले रोजा भी 3 नहीं रखा हो, तो अब उनके लिए अय्याम हज में सिर्फ 11-12-13 ही के अय्याम बाकी है, तो वो रोजा रखेगा। बाकी 7 दिन जब घर लौटेगा तो रोजा।
ایک حدیث اور اسی تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حج کو عمرے سے تبدیل کروا دیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قدیمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی روایت بھی حضرت جابر کی تھی، یہ حدیث بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مکہ، اور ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ہم لوگ حاضر ہیں حج کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کریں، عمرہ کر کے حلال. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ پہنچے صبیحۃ رابعۃ، 4 ذی الحجہ کی صبح فجر کے وقت، اور وہیں آپ نے نماز پڑھی، غسل کیا. سورج جب نکل گیا تو آپ وہاں سے چلے مکے میں آئے، طواف کیا، اور یہیں آپ طواف کر کے سعی کر کے آپ رہے احرام میں. لیکن ان لوگوں سے کہا جن کے ساتھ ہدی نہیں تھی، کہا طواف صحیح آپ کی ہو گئی، چلیے بال چھوٹا کرائیے پورے سر سے اور حلال ہوئی. تو آپ نے حکم دیا لوگوں کے کہ وہ عمرہ کریں، عمرے میں اپنے حج کو تبدیل کریں. فقالوا یا رسول اللہ، کون سا حل؟ حلال ہونے کا کیا مطلب؟ قال الحل کلہ، مکمل حلال ہونا. جو بھی حلال ہونے کا مطلب ہوتا ہے مکمل حلال ہونا. احرام سے پہلے جو حالت تھی وہ حالت جس میں آدمی سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بال ناخن کاٹتا ہے، بیوی استعمال کرتا ہے، سب حالت مکمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ. آمین وإياكم. جی بھائی لوگ اپنے سوال آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہو. جی ایک سوال ہے شیخ، جو اشعار کے بارے میں آپ نے بتایا، شناخت کے اگر کوئی اور ذرائع بھی آج کل پائے جاتے ہیں نا شیخ، کوئی انک ہے، بیلٹ ہے، ربر ہے، تو نہیں، باوجود جو چیز اس کے باوجود بھی یہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خون نکال کر کے، جانور کا خون نکال کر کے اس کے جوتے میں لگا کر یا مشکیزہ میں لگا کر، یا کچھ اگر پھال وال درخت کی اس کے گلے میں لگا رہے ہیں تو اس پہ خون جا بجا لگا کر کے لے جانا ہے. یہ علامت ہے اس جانور کی. جزاک اللہ خیر شیخ. وہی کریں گے جو سنت سے ثابت ہے. جی اگلا سوال ہے شیخ. السلام علیکم. عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے لیے کہا تھا عمرہ کے اوپر حج کی، تو یہ جب حج کے دن سٹارٹ ہوئے تب نیت کری تھی، یا جس دن وہ حیض سے ہوئی تھی اس دن سے کرا تھا؟ اسی کے بیچ بہرحال وہ احرام کی نیت سے تو رہی. قارینہ کا مطلب یہ نہیں کہ احرام کی نیت انہوں نے ختم کر دی کہ ہم نے عمرہ ختم کر دیا. آپ نے سنا نہیں کہ آپ نے کہا کہ افعلی ما یفعل الحاج، اسی دن آپ نے کہا تھا کیوں اس کو روتی ہو، پریشان ہوتی ہے. افعلی ما یفعل، جو حاجی کرے گا وہی تم کرنا. اترک العمرہ، عمرہ چھوڑ دو. تو یہ آپ نے اس وقت بھی کہا، اور جب مینا کے دن نکلنے کا دن ہوا ہوگا تو اس دن بھی کہا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی دن کہا، لیکن اس دن بھی کہا. کیونکہ جب آپ ان کے خیمے میں داخل ہوئے، جس جگہ پہ آپ رکے تھے مقام شریف میں، تو وہ رو رہی تھی. تو رونے کے وقت ان کو کہیں گے کہ کیوں روتی ہو؟ هذا شيء كتبه الله ولا بنات هذا افعلی ما يفعل الحاج، وہ سب کام تم کرنا جو حاجی کرے گا، غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف کعبہ کا طواف نہیں. تو ہو گیا کہ صاحب تم مینا، عرفات، مزدلفہ، تمام مشاعر مقدسہ میں جا سکتی ہے، صرف کعبہ کا داخلہ تمہارے لیے ممنوع. تو ڈھارس بچ گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس مجلس میں کہا ہو یا دوسرے دن کہا ہو کہ اترو کی عمرہ، عمرہ کے ارکان چھوڑ دے، عمرہ کے ارکان پر حج کی نیت کا اضافہ کر، غسل وغیرہ کر کے فریش ہوا. چلیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بھائی لوگ یہ یاد رکھ لیں کیونکہ ہم ٹائم سے 5 منٹ آگے چلے گئے، تو ہم بالکل صرف 2 یا 3 سوال لیں گے بس، اور 2 سوال لیں گے انشاءاللہ. جی شیخ اگلا سوال ہے، احرام کے 2 سیٹس یوز کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں 2 سیٹ رکھیے، 3 سیٹ رکھیے ضرورت کے مطابق. کیونکہ بہرحال آپ حالت احرام میں ہیں، اگر اپنے ہندوستان سے بھی جا رہے ہیں تو 2-3 دن تو لگ ہی جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے. آدمی جاتا ہے اور اس کے بعد دن بھر میں وہاں پہنچتا ہے، اور پھر کاروائی ہوتی ہے، اس میں گھنٹوں لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولد کی بسیں آتی ہیں، اور پوری کاروائی ہوتے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے تو لگ ہی جاتے. اب آدمی گیا ہوا ہے ہوٹل کے اندر، کھایا پیا اور فریش ہوا، واش روم وغیرہ کی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، اب اگر طبیعت پڑا گندگی ہے تو اچھا ہے. ویسے بھی مکہ میں داخلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں داخلے کے لیے غسل کیا تھا، جہاں آپ فی مزن ہوئے تھے.
वादी यजी तवा में, जो 1 मील के फासले पर मक्के से था, तो आपने गुस्ल किया मक्के में तवाफ के लिए दाखिल होने के लिए, तो वैसे भी मुस्तहब है कि साहब चलिए गुस्ल कर लेते हैं। तो अभी इहराम की चादर में है तो क्या करेंगे हम, उस वक्त तक कौन सी चादर पहनेंगे? तो अगर ये है कि साहब आप बंद गुस्ल खाने में नंगे होकर के अगर आप गुस्ल कर सकते हैं और चादर आपकी साफ है, फिर आपने उसको पहन लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जायज है। और अगर एक सेट रखे हुए हैं तो चलिए उसको उतार करके 2 दिन का है, पसीना लग गया है, तो इसको धो दीजिए या लॉन्ड्री में दे दीजिए और आप अपना दूसरी दूसरी चादर पहन लीजिए। फिर उसके बाद उम्रा करके लोग आते हैं तो उसको भी लॉन्ड्री में दे देते हैं, 2 सेट तैयार है। अब 8 तारीख को निकले मीना के लिए और 9 तारीख को जब अरफात जाने लगे तो फिर उस चादर को रख दिया लपेट करके, और दूसरी जो धुली हुई चादर है उसको पहन करके चले गए अरफा। और अरफा से मुजदलफा आए, रात में मुजदलफा से आए, कंकड़ी लगाई, बाल मुड़वाया, हलाल हो गए, हराम की चादर खोल गई। तो अगर आप 2 सेट रखते हैं तो इंशाल्लाह आप आफियत होगी आपकी। जज़ाकल्लाहु जी खैरन। इंशाल्लाह हम इस आज का आखिरी सवाल लेंगे। हाइजा हैज़ की हालत में सिर्फ सॉरी हैज़ की हालत में तवाफ नहीं कर सकते लेकिन सही कर सकते, तो आयशा नहीं रदी कहा, नहीं कर सकते। कहा ना कि अगर उम्रे की नीयत से पहुंची है तो तवाफ के बाद ही सही करेंगे, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सही नहीं किया था, तो इसीलिए वहां तवाफ करेंगे पहले, उसके बाद सही करेंगे। जी एक सवाल ले ले क्या शेख, ये टॉपिक से जी रिलेटेड। जी, कुछ लोगों का मानना है कि 10 जिलहिज्जा का तवाफ या सही 10 जिलहिज्जा से पहले कर लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कभी भी जायज नहीं है जब तक कि मीना अरफात से आप लौटेंगे नहीं, मुज़दलिफे से नहीं, सुम्मा अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम। यह है कि जब वहां से निकलो उसके बाद अपने अपनी गंदगी करो, वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। तो जबड़े अक़बा को कंकड़ी लगाने के बाद मिना से अरफात से मुज़दलिफा से लौटने के बाद ही होगा। अब कुछ लोग ये करते हैं कि मुज़दलिफा से जब लौटे सुबह फजर की नमाज के बाद, तो कुछ लोग सीधे वहां से मक्का का रुख करते हैं, काबा का तवाफ सफा मरवा की सही कर लिया और उसके बाद वही मक्के में बाल मुड़वा लिया और वही हलाल होके रह गए। अब फिर वो जब आए शाम में तो उन्होंने रविये से मार जबड़ा अखबा को कंकड़ी लगाई। ये तो होगा, लेकिन 10 तारीख जब हो जाए फजर के बाद ही आदमी तवाफ करेगा, उससे पहले नहीं कर सकता। मुजदलफे से तरतीबवार अमल यह है कि आइए आप जबड़े अखबा को कंकड़ी लगाइए, बाल मुड़वाइए, गुस्ल वगैरह करके सिला हुआ कपड़ा पहन के जाइए, तवाफ कीजिए सफा मरवा की सही, ये है तरतीब। लेकिन अगर कोई इस तरतीब के खिलाफ, औला के खिलाफ अगर करे कि पहले सीधे वो मुजदलिफा से निकल जाए फजर की नमाज के बाद मक्का और मक्का से तवाफ सही करके आखिर रमी करे, या फिर वही मुड़वाले बाल इहराम की चादर खोल दे और उसके बाद वो आकर के रमी जमार करे और फिर अपने खेमे में आ जाए, तो कोई हर्ज नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। भाई लोग माज़रत के साथ क्योंकि शेख साहब का वक्त 10 मिनट बढ़ गया, सवाल तो है लेकिन हम अब सेशन ख़त्म करेंगे और कल आप लोग आपके इंशाल्लाह अगले दर्स में मौका मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। हय्याकुम।